तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं टाइटंस की टेक टॉक। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एनवीडिया एआई समिट इंडिया में दुनिया के टॉप सीईओज के बीच शानदार चर्चा हुई। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने एआई की दुनिया में भारत की अहमियत और भविष्य पर दिलचस्प चर्चा की। मुकेश अंबानी ने भरोसा दिया कि लोगों को एआई सुविधाओं के लिए फोन या कंप्यूटर बदलने नहीं होंगे। जियो और एनवीडिया मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा डिवाइस पर ही सर्विसेज मिले। We are now ready for big scale up, so we are building infrastructure, right? And we think big, so we're building infrastructure for 1 gigawatt, which can be expandable to multiple gigawatts at one location. We already have the green power so that we are not dependent on anybody else for power. We are building this so that we can scale this, and as your multiple order of magnitude technologies come, we will build our infrastructure, and we will. One important piece that I believe is important is that for India and Indians, right, we have to repeat a geo for intelligence to be really affordable, available to the common people. Yeah. And towards that, it is important that we design and build infrastructure so that to use AI, our customers don't have to change a phone, don't have to change their computers, but they can still get good quality AI, and we take the burden of putting that infrastructure together. मुकेश अंबानी ने न सिर्फ जियो की ताकत का परिचय दिया, बल्कि ये भी बताया कि जियो दुनिया में सबसे सस्ता सिर्फ 15 सेंट प्रति जीबी डाटा देता है। जियो We delivered about 16 exabytes of data this year, or we will deliver this year, and the average in the US you pay $5 a GB. In the world average for data is about $3.50 a GB. In India, Jio delivers data at 15 cents a GB. That technology has delivered customer value of between $500 and $700 billion a year on year, every year, and this to Indians. And this is the gift of technology to the people of India. And this is what, right, what you described as intelligence, we can do to actually bring prosperity to all the people and bring equality to the world. And that is the opportunity, why I described this. And this is the reason that India will be one of the biggest intelligence markets. And it's not only our aspirations, but I think it is just the raw gene pool and the raw gene power that exists in India, the youth power that exists in India. भारत में युवाओं की आबादी को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि डेमोग्राफी, लीडरशिप और टैलेंट भारत को मजबूत बना रहे हैं। Experience in India. First, right, as our Prime Minister has said, that this is a new aspirational India. What we have today is we are among the only country in the world where the average age of 1.4 billion Indians is below 35. So what is driving our economy is not only new technologies like AI, but also aspirations. And I believe that, you know the Prime Minister, and I believe that his leadership in terms of converting India to a premier digital society has been vital.
and continues to drive activity at the ground level. So it's demography, it's leadership. The third factor is that we as Indians have the raw talent. You talked about converting 200,000 people into this, but I believe there are millions, right? If we now see India has become home, right, among all the companies across the world. इस मौके पर एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा कि वो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि भारत एआई क्रांति का फायदा जरूर उठाएगा। Leveraging on everything that you have, leveraging on everything that you know, and your indigenous advantage, enormous amounts of data, a large population of consumers to drive that flywheel of intelligence to data, data to intelligence, intelligence to data, and have the national will to go do something about it. This is such an extraordinary time, and I am honored and privileged to be partnered with you to do this. And let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 80,065 पर और निफ्टी 36 पॉइंट गिरकर 24,399 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव रहा तो वहीं एफएमसीजी, रियलिटी, ऑटो शेयर्स गिरावट पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग, पीएसई, फार्मा इंडेक्स में दिखी। आज सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स में खरीदारी तो निफ्टी के 50 में से 26 शेयर्स में बिकवाली रही। तो चलिए अब चुनावी दंगल की खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया और अपनी ताकत दिखाई। रोड शो के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बरहेट सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अब आपको अपडेट देते हैं राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण का। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक हुई। एलजी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। गोपाल राय ने बैठक के बाद कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में एकाएक होने वाला इजाफा की स्थिति बन सकती है और इससे निपटने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने गोपाल राय से प्रदूषण के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन के दौरान डीडीएमए की बैठक के बारे में बातचीत की। देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और आईजीएल मिलकर इस तरह के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चला रही है और इसके तहत मंत्री पर्यावरण मंत्री जो गोपाल राय हैं वहां पर इस वक्त एक आईजीएल के सीएनजी स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर ऑटो पर कई जगह पर इस तरह के स्टिकर लगाए। सर, ये जो कैंपेन है, स्टिकर कैंपेन, ये कैंपेन तो चल रहा है, स्टिकर आज लगाने से किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह के आप अवेयरनेस? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। अभियान को और गति देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका स्टिकर कैंपेन आज से हमने शुरू किया है आईजीएल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने एक स्टडी में देखा कि पर व्यक्ति पर डे दिल्ली के अंदर जो सड़क पर जाता है सुबह से शाम तक लगभग 12 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। हर रेड लाइट पर 2 मिनट के लिए वो अपने गाड़ी का इंजन चालू रखता है। 2 मिनट के हिसाब से हम देखें तो लगभग आधा घंटा हम सारे लोग अगर रेड लाइट पे इंजन बंद नहीं कर रहे हैं तो आधा घंटा बेवजह हम प्रदूषण पैदा कर रहे हैं।
तो हमारी कोशिश है इसके माध्यम से कि रेड लाइट आए जब तो अपना इंजन बंद करें और जो अपने हिस्से का पोल्यूशन हम सारे पैदा कर रहे हैं उसको कम करें। आज एक अहम बैठक भी हुई डीडीएमए की, आप भी शामिल थे उस बैठक में। किस तरह के स्टेप्स उठाने की बात हुई है? देखिए, कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे मुख्य बात हुई है कि जैसे दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो गया, उसके लिए हमने अभी 3 दिन पहले बैठक की थी अधिकारियों के साथ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने ये देखा भाई, जब ग्राउंड पे चेक करने गया तो हमने ये देखा कि जगह जगह मैन पावर की कमी है। टीमें तो बन जाती हैं, लेकिन वही व्यक्ति ये भी काम कर रहा है, वही व्यक्ति वो भी काम कर रहा है, वही व्यक्ति वो भी काम कर रहा है। तो आज डीडीएमए के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, उन सब लोगों को जो है इस पूरे अभियान में उनको ड्यूटी पे लगाया जाए। इन अलग अलग विभागों के साथ मिल करके वो अभियान को आगे बढ़ाएं। कृत्रिम बारिश के लिए भी अब बात कर रहे हैं कि दिवाली के बाद काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, क्या स्टेटस है उसका, क्या अभी तक? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हम लगातार पर्यावरण मंत्री जी के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बैठक करके दिल्ली में इसको जो है इस बार लागू किया जाए। आज हमने डीडीएमए की बैठक में एलजी साहब से भी निवेदन किया है कि वो भी केंद्र सरकार से बात करें कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का जो पायलट है वो इस बार किया जाए। आईआईटी कानपुर ने जो इतनी मेहनत करके रिसर्च की है, मुझे लगता है कि उसको दिल्ली में हमें डेमो करना चाहिए। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। एलएसी को लेकर हुए समझौते और उसके बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच माहौल को बदल दिया है। क्या ये दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत करीब 6800 करोड़ रुपए है। साथ ही स्पेस सेक्टर के लिए खास वेंचर कैपिटल फंड बनाने का भी फैसला लिया गया है। डिटेल्स लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, डिटेल्स क्या है उसकी? देखिए, कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक फैसला बिहार के लिए है, जहां पे नेपाल बॉर्डर सटे हुए इलाके में नकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर रेल लाइन को डबल लाइन में करने का फैसला लिया गया है। ये करीब 256 किलोमीटर की लाइन है और 4553 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत आएगी। दूसरा फैसला आंध्र प्रदेश में अमरावती के लिए लिया गया है। अमरावती को मेन रेल लाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 57 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस पर करीब 2245 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरा फैसला स्पेस सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का ऐलान किया गया है। ये वेंचर कैपिटल फंड हर स्टार्टअप में 10 से 60 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी और 30 से 35 स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी, जहां पे स्टार्टअप को इनोवेशन करने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सरकार फंड करेगी। तो ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।